So first, a bit of introduction of myself. My name is Fatma Saima, and I'm serving as Assistant Commissioner in Karachi, currently under training. And thank you so much for waiting all this time for me. Now, today, what I had planned to teach all of you was about how to ace CSS examination, and I had planned to divide it into two sections. Right, we start with before the exam, and the second part is going to revolve around during the CSS examination. Now, first and foremost, what I want to tell all of you is that don't think that the CSS exam is something, like a mountain you have to cross. It's something only lucky people get a chance of accomplishing. No, it is just another exam. And I think the biggest thing is that it's about changing your personality all in itself. So it's a game of psychology out here playing there as well. Now, I'm not going to go into details about the CSS exam, the Central Superior Services exam, what it is about, and how you get into the federal service, because I know that most of you must already be knowing about that. The FPSC has all the rules, the regulations, the subjects, the syllabi, the books, the recommended books, the textbooks, everything uploaded out there. But the first thing I would like to focus upon is the selection of subject, because when you decide that you're going to give that exam, the first thing you're going to do is you're going to select your subjects. And there is one thing that I have been telling everybody, and I reiterate here as well, and that is that don't just go for what people tell you, because you are the best person who can decide what subject you want to take, right? That could be on the basis of your aptitude, that could be on the basis of your interest, that could be on the basis of your degree, it could be a combination of all of them. Like, that's about the optional subjects. The compulsory subjects are those which you have to give at all cost, right? And many times that's where they attack you. You get slaughtered out there. Many times it's going to be the essay examination or the Presi and composition, and sometimes you also have Islamiyat being attacked. So today I'm going to deal with how you're going to cope up all of them together. First thing first, now you've selected your subjects. Take as much time as you want for it, right? Take a month or so, think about it, ponder, go through the syllabi, go to the library, see what books you can get. Like, if you can get things in the library, well and good, the more you read, the better. And once you finalize your subjects, next comes reading. There are 3 rules that I give particularly for preparation of CSS, and that is you need to read more, you need to write more, and you need to think more, right? The more you read, the more your thoughts are going to establish. The more you write, the more you're going to remember. And then again, the more you write, you also have the muscle memory. Like I said before, you're going to remember it, and you're going to have it in note format, right? Like, even if you read books, books and books of stuff, it's not going to be enough for you to go and reproduce all of it in the exam. You need to make it short, because the routine of the examination is such that it's really hectic. You cannot afford to read all of it again, and then again you're going to forget it again as well, right? So this is one thing that I did, that I read the newspapers every single day, and then I did make notes of them. So then when the exam was closer, I just had to open and go through the notes that I had made, and it was all so simple for me. I remembered everything of it. Now, the third thing that you have is to think about it, right? You need to think between the lines, because when you're reading something, that is somebody else's experience that you are ingraining. You're polishing your mind, you're refining your mind. But then when you think about it, it's your element, the originality of your brain, that is adding up into that as well. So I think you need to think more. Coming back to the point of reading, right? Like I said before, read the newspapers, read books that you can. Newspapers in Pakistan, the Daily Dawn is the best recommendation that we have, because it's really crisp and it's one of the best out here. So read the Daily Dawn every single day, and that again, don't read every part of it. Like, you have showbiz and everything. It's up to you if you want to read it, but try to focus on the more important parts: the international section, the national issue section, and the economic section. Also follow the dollar rates. The oil rates, how they change, because that is one thing that's really important when it comes to economy as well. And economy is like going to be everywhere in CSS, in the exam. When you come, you're going to realize afterward how really economy is so important for the world right now.
Then, along with the Daily Dawn, I would also recommend reading international newspapers, like read the New York Times, read the Huffington Post, read the Washington Post, as much as you can get your hands on, because you're going to get international expertise and international thoughts on that as well, which is going to refine your thinking eventually. It's all about changing yourself for the exam. Okay, I've got 2 comments which say slow, so I'm going to go slower. So I was focusing on reading. Read as much as you can. Write what you read. Try to reproduce them in your own words. राइट आपने जितने अखबार पढ़ सकते हैं, आपने करंट इश्यूज़ को फोकस किया, आपने इंटरनेशनल मसलों को फोकस किया, उसके बाद आपने वही चीज़ अपने लफ्ज़ों में लिखा. Like what happens when you do that is you're not going to forget what you have read, right? And then during the exam, right, it will be easy for you. आपको फिर वो ज़्यादा याद रहती है. एक दूसरी टिप जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी दैट इज़ कि अखबार तो मेरे ख्याल से आप सब लोग पढ़ते होंगे, राइट? तो आपका जो एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है, आपको पता होगा आपके डॉन के अखबार में जो बीच में आती है ओपिनियंस सेक्शन, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स अपने आर्टिकल्स शेयर करते हैं. तो आपकी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे यू हैव लाइक 3 या 4 या 2 इवन कभी कभी छोटे छोटे आर्टिकल्स. अच्छा, वो कौन लिखते हैं? दैट इज़ रिटन बाय द एडिटर, इसलिए उसको एडिटोरियल कहा जाता है. तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप सब वो जो एडिटोरियल सेक्शन है उस पर हर रोज़ आप प्रेसी लिखा करें, क्योंकि उसकी जो लेंथ है उसी लेंथ का तकरीबन यू विल हैव आपके CSS के एग्ज़ाम में जो प्रेसी का क्वेश्चन आएगा. तो आप उसको जब हर रोज़ लिखते जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्टली यू नॉट गोइंग टू फॉरगेट, क्योंकि आपने वही चीज़ अपने लफ्ज़ों में लिखा. करंट अफेयर्स की आपकी अच्छी खासी होल्ड हो जाएगी, और उसी के साथ रिलेटेड काफ़ी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे अगर आप US हिस्ट्री कर रहे हैं, IR करें, तो कहीं ना कहीं वो फिट इन हो जाएगी ये जो नॉलेज आपने हासिल किया, ठीक है. और थर्डली जो ये है आपकी प्रेसी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अच्छा, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग प्रेसी के बहुत सारे रूल्स हैं. अब क्योंकि अब मैं यहाँ पे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती, तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि प्रेसी का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको 1/3 तक आप उसको शॉर्ट करते हैं आप अपने वर्ड्स में, ठीक है. तो जस्ट फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अच्छा, कभी कभी हम ये देखते हैं कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी लिखी होती हैं जो उस बॉडी ऑफ फैक्ट्स को थोड़ी एक्सपैंड करती होती हैं, ठीक है. कुछ इलाबोरेशंस हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ एडेड डिटेल हो सकती हैं, कुछ एडेड अल्फाज हो सकते हैं जिसकी हमें बेसिकली ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसको सिर्फ क्रिस्प बना लेते हैं, ठीक है. तो एक स्टैंडर्ड जो हमने ये रखा है कि किसी चीज़ को क्रिस्प बनाने के लिए आप उसको 1/3 तक कम कर सकते हैं. उसके वर्ड्स गिन लें, फिर आपने जो फाइनल किया उसके वर्ड्स गिन लें. अच्छा, प्रेसी के अक्सर ड्राफ्ट्स भी बनते होते हैं, ठीक है. आपने फ़र्स्ट ड्राफ्ट लिखा, फिर आपने देखा ठीक है 1/3 बनता है, नहीं बनता, फिर आपने उसको दोबारा से लिख लिया, ठीक है. दोबारा से मतलब कहीं एक अल्फाज, एक लफ्ज़, 2-3 अल्फाज आपने ऊपर नीचे कर लिया, तो फिर आपका वो एक्यूरेटली 1/3, 1-2 19-20 का फ़र्क हो सकता है, आपने उसको शॉर्ट कर दिया, जस्ट मेकिंग इट क्रिस्प. अच्छा, ये क्या करेगा? ये आपकी प्रेसी में मदद करेगा. फिर उस दिन आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस किया. उसके अलावा करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स और जो भी सब्जेक्ट पे वो फ़िट कर सकता है वो आपको फ़िट भी कर लेगा, ठीक है. अच्छा, ये हुई बात राइटिंग पे. अच्छा, हर रोज़ जो आप चीज़ें पढ़ते हो उस पर लिखा करें, ठीक है. और जब आप उस पर लिखते हो, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. पूरी की पूरी चीज़ें ना लिखा करें, ठीक है. उस पर शॉर्ट आप लिखा करें, पॉइंट फॉर्म में लिखें, कोई आप टेबल्स बनाएं, आप रंग बिरंगी चीज़ें बनाएं, ताकि आपको वो ख़ुद बाद में इंटरेस्ट भी करे. ये क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि दिस विल हेल्प यू एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है. उससे पहले तो आपके पास जब बहुत टाइम है, आप अपना बेस्ट तब दे दीजिएगा, ठीक है. ओके, इस पे भी मैं आती हूँ बिल्कुल. सब्जेक्ट सिलेक्शन, व्हाट आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. अच्छा, सब्जेक्ट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो एक तो होती है स्पेकुलेशन. पीपल से कि अच्छा दिस इज़ गोइंग टू बी स्कोरिंग दिस या दिस इज़ नॉट, ठीक है. ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बताते हैं, बट दैट इज़ स्पेकुलेशन, तो मैं उस पर डिपेंड नहीं करना चाहती. रही बात साइंस सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स बेस्ड या साइंस बेस्ड,
दीज सब्जेक्ट्स आर जनरली स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड मार्क्स होते हैं। आपने अप्लाइड मैथ्स का पेपर दिया, मैथ्स के पेपर पे अगर आपने सही जवाब लिखा 1 मार्क नहीं काट सकते। अच्छा, रही बात सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स की, जैसे IR की अक्सर मार्क्स कटी जाती है क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव है। ठीक है, आप उस पर किताबें पे किताबें लिख सकते हैं, आप उस पर एक सवाल का जवाब 3-4 पेज का लिख सकते हैं। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स? अगेन विच सब्जेक्ट्स टू सिलेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी जो कुछ पढ़ी हुई सब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए खुद आसान, इट वुड बी ईजी फॉर यू, क्योंकि फिर आप अकॉर्डिंगली अपना फोकस और सब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम उन पे दे सकते हैं कंपेयर टू द सब्जेक्ट यू वुड हैव टू यू ऑलरेडी स्टडीड वाइल्स गेटिंग योर डिग्री। उसके अलावा तो मेरी यही है कि अपनी पेपर को ऐसा रखें, आगे जाके आई विल टेल यू व्हेन अटेम्प्टिंग द पेपर और कैसे जवाब लिखी जाती है ताकि वो स्कोरिंग बने, चाहे उसको स्लॉटेड भी करना पड़े, आपका पेपर ऐसा हो कि वो पास हो जाए। ठीक है, बात है कि मेकिंग योर पेपर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, तो उस पर ट्रिक है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आई मीन मिडल ऑफ नोवेयर, डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड विच टॉपिक टू चूज़। अच्छा, ये भी डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कोई फेमिनिस्ट आपके साथ अगर है तो शी कैन गो फॉर अ टॉपिक, यू कैन गो फॉर अ टॉपिक इफ़ यू हैव अ फेमिनिस्ट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट यू। आप लिटरेचर के शौकीन हैं तो लिटरेचर पे जाए। शुरू आपने इंटरेस्टिंग बनानी है, शुरू में हमेशा आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, आउटलाइन आपने लिखा, टू द पॉइंट रहे, रेलिवेंट रहे, ऑफ टॉपिक ना आ जाए। लेंथ पे अक्सर लोग ये कहते हैं हमने 2-3 कॉपियाँ भरनी है इसलिए दुनिया जहान की चीज़ें लिख ली, डोंट डू दैट, स्टे रेलिवेंट। ठीक है, आपने आउटलाइन बनाई, हर चीज़ आपने क्लियर लिखा, आउटलाइन को ज़्यादा लंबा ना बनाए ना इतनी ज़्यादा शॉर्ट बनाए, वो सिर्फ आपकी चेकर को बताने के लिए है कि ही नोज़ कि आपने किस डायरेक्शन पे लिखा है। जो ऐसे का टॉपिक है उसको समझें, किसी भी टॉपिक पे बंदा पास हो सकता है, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड रूल। ऐसे का मतलब ही है कोशिश। ठीक है, इट मीन्स एन अटेम्प्ट, राइट? तो इट कुड बी इन एनी वे, बस आपने अपनी शुरुआत को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है कि आपका जो चेक है, चाहे आपने कोट से स्टार्ट किया, आपने कोई रेफरेंस से स्टार्ट किया, आपने कोई यू वेंट इनटू नैरेटिव फॉर्म, कोई भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, आप हर तरीक़ों, नैरेटिव को ट्राई करें, डिस्क्रिप्टिव को ट्राई करें, हर चीज़ को इनकलकेट करना है क्योंकि ये लॉन्ग ऐसे का तरीका। एंड इसका सीक्रेट यही है जो मैं बताने भी वाली थी इन राइट, कि आप जितनी ज़्यादा आप रीड करेंगे उसके साथ आपने राइट भी करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो, आप उसको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर आप उस हर चीज़ को लिख ना पाए ना, तो फिर इट लीड्स टू नोवेयर, क्योंकि चेकर को पता ही नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा राइट करें। तो हर रोज़, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू राइट 1 पेज, शुरू में 1 पेज लिखें भले, जस्ट स्टार्ट बाई राइटिंग। ठीक है, यू रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी, बिकॉज जो आप रीड करते हैं ऑटोमेटिकली आप राइट भी अकॉर्डिंगली करने लगते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, यू अट्रैक्ट, यू एब्जॉर्ब व्हाट यू रीड। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा रीड करेंगे, जस्ट कीप राइटिंग मोर। अच्छा, या कोई सोशल इशू है, आजकल कोविड-19 का इतना मसला चल रहा है, कोरोना का मसला चल रहा है, लॉकडाउन है, लोग बात नहीं मान रहे, ईद आई हुई थी, लोग सारे शॉपिंग पे लगे हुए थे बाहर, इस पर आप कुछ बना के लिखें, 1 पेज लिखें, 2 पेज लिखें, जस्ट सो दैट यू आर इन प्रैक्टिस। लिखते रहेंगे, 2 पेज से स्टार्ट किया, 3 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, 10 पेज लिखे, तो यू वुड बी इन प्रैक्टिस। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट, जस्ट राइट। अच्छा, थिर्डली थिंक। आप जो चीज़ पढ़ते हैं, आप जो चीज़ राइट करते हैं, देन यू थिंक अबाउट इट कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, इसकी वजह क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अच्छा, अगर आप लॉकडाउन सिचुएशन की आपने सोचा, एंड देन यू गोना थिंक इसकी मैं सोल्यूशन क्या ला सकती हूँ, इधर से आपकी ओरिजिनलिटी आएगी। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने CSS के सवाल भी देखे होंगे, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि ये चीज़ हमें बताएं, बल्कि उसके अलावा ये भी बताते हैं, आप लोग रिकमेंडेशंस भी दें, आप सोल्यूशंस भी दें। क्यों? क्योंकि आगे जाके CSP ने, आप सब ने आगे जाके पॉलिसीज़ बनानी है। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर पर्सनालिटी इन सच अ वे कि आप हर चीज़ का हल भी निकाल सकें। सो दैट्स अगेन वन थिंग, उस पर बहुत ज़्यादा सोचा। मुझे याद है जब मेरा टाइम था CSS देने का, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो मैं क्या करती थी, मैं शाम को वॉक किया करती थी, और शाम को वॉक करते करते मैं वो हर चीज़ के बारे में सोचती थी। उस वक्त ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, ट्रंप ऐसा बंदा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो रिस्पेक्टफुली। अच्छा, फिर उसकी हर चीज़, वो ऐसा क्यों कह रहा है, इकोनॉमी के बारे में ऐसा क्यों कर रहा है, तो आई यूज्ड टू थिंक, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट US हिस्ट्री भी था, तो आई यूज्ड टू ट्राई टू कनेक्ट विद दैट। और यकीन कीजिए, वो जो मैं 1 घंटा वॉक करती थी, उसमें मेरी तैयारी भी होती रहती थी। क्यों? बिकॉज मैं सोचती थी, अच्छा, जो मैं सोचूं, जो मैं कंक्लूजन्स डिराइव करूं, वो मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है। और CSS का जो चेकर है, उसको ये चीज़ इंटरेस्ट करती है कि
कि इस बंदे की ओरिजिनलिटी क्या है. सो दैट्स अगेन वन थिंग आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा सोचना भी चाहिए. अपने आप को थिंक, क्यूरियस माइंड रखना शुरू करें, हर चीज़ के बारे में सोचें, फिर उसका हल भी सोचा करें कि आप उस पोजीशन पे होते, अगर आप सीएम होते तो आप क्या करते. ठीक है, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते. अब जो लोकस्ट अटैक हुआ है, अगर आप होते आप कितनी पहले इस पर कोई एक्शन लेते. तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई थिंक यू रियली नीड टू थिंक अबाउट. अच्छा, फिर आता है अपना रूटीन सेट करना. हर बंदे की जो है अलग प्रोडक्टिव टाइम होती है. अब जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई एम ए नाइट स्लीपर. मुझे रात को सोना अच्छा लगता है, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, फिर मेरा दिन शुरू हो जाता है. दिस हैज़ बीन मी एज अ पर्सन. अच्छा, हर बंदे का डिफरेंट होता है. किसी को सारा दिन सो के रात को पढ़ना अच्छा लगता है साइलेंस में. तो दीज आर ऑल दीज वेरी पर्सन टू पर्सन. तो अपना रूटीन ऐसा सेट करें कि आपका जो वो प्रोडक्टिव टाइम हो उस पर यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग, ताकि आप कम टाइम पे भी आप 2 घंटों पे वो कर लेंगे जो दूसरा बंदा से अगर आप ही किसी और वक्त पे करते हो तो आपको 6 घंटे लग जाते हैं. तो गो फॉर दैट प्रोडक्टिव थिंग. अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको तहज्जुद के वक्त पे बड़ी अच्छी समझ आती होती है. तो अगर वो है तो को बिस्मिल्लाह करें. आप दीन में भी कामयाब होंगे और यकीन जाने आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, देन बिकॉज वी आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. तो आती हूँ मैं एग्ज़ाम के टाइम पे. जैसे आप सबको पता है, यू हैव 2 एग्ज़ाम्स एवरी डे. आपके पास गैप्स भी नहीं होते. अच्छा, हम इस चीज़ के आदी होते हैं बिफोर स्कूल टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे वी यूजुअली हैव गैप्स. तो वो हमारा टाइम होता है रिवाइज़ करने का, या कोई चीज़ ना भी पढ़ी हो, क्लास में सुन ली हुई हो, हम उस टाइम पे उसको कवर अप करते हैं. यू कैन नॉट डू दैट इन CSS. ठीक है, सारी रात आप जाग ही नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज देन यू गोइंग टू लूज़ इट. हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग थे कि पहले 2 दिन 2 पेपर दिए, अगले 2 दिन 2 पेपर दिए, तीसरे दिन दे वर नॉट फिट इनफ, या उनकी प्रोडक्टिविटी गिरी, या उनको वॉमिटिंग शुरू हुआ, या दे वर जस्ट नॉट फिट इनफ. सारे आंखें ब्लैक करें तो वो डिप्रेशन भी आपको आ जाती है. तो माई थिंग इज़ गोइंग टू बी, जब आपका एग्ज़ाम सर पे होना, पहले जितनी तैयारी हो, जितनी रातें जागनी हो, वो पहले की होती है. इट इज़ नॉट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम पे रात को सोना है. आपने अच्छे सही हेल्दी खाना खाना है. यू डोंट वांट टू फॉल सिक. एक मेरी कोलीग थी, बहुत पहले की बात है, शी इज़ नाउ इन OMG ऑफिसर, लेकिन बहुत पहले की बात है कि इट वॉज आई थिंक अ फर्स्ट अटैम्प्ट. तो उसका फिर ये था कि पहले 2 एग्ज़ाम्स दिए, सेकेंड डे 2 एग्ज़ाम्स दिए, फिर थर्ड डे पे जाके BP लो, शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. तो उसका वो अटैम्प्ट ज़ाया गया था. इट वॉज अ फर्स्ट अटैम्प्ट. तो ऐसे भी होता है. तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू वांट. तो पहले जितनी तैयारी करनी आप कर लें. एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन, वो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो पहले हमने बात की कि आप हर रोज़ पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी को आप रिवाइज़ किया करें एंड बी हैप्पी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ना समझें कि आप CSS इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, आपने पहाड़ कूदना है. ये डर जो है ना, इट इम्पैक्ट्स योर इट रियली इम्पैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी अ लॉट. तो आई वुड रियली रेकमेंड कि उस टाइम को बी रिलैक्स्ड, आप वहाँ पे जाएं. आप बस ये सोचें. अच्छा, जो मैं करती थी और आई थिंक इट हेल्प्ड मी एज़ वेल, आप अपने आप को इतना ग्रूम कर दें कि जब आप वहाँ पे जाएंगे आप ये सोच रखें कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ एग्जामिनर चेकर को सिखाने. तो आप जवाब को ऐसे अटैम्प्ट करें कि इट अट्रैक्ट्स हिम एंड यू कीप इट सिंपल. ये जो लोग कहते हैं बड़े मुश्किल अल्फाज यूज़ करें, फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. I mean, it's all about conveying your message, giving logical explanations for everything and letting the checker know what you've written. अच्छा, ये होता है कि उस बेचारे चेकर को, अगेन गोइंग टू द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ हैं. ठीक है, वो हर कॉपी को लाइन पे लाइन नहीं पढ़ सकता. तो अपने कॉपी को आप डिफरेंट कैसे बनाएंगे? यू कैन यूज़ मार्कर्स, यू कैन यूज़ मल्टी कलर्ड पेन्स, मल्टी कलर्ड ब्लैक एंड ब्लू, नॉट अदर कलर्स प्लीज़. ब्लैक के साथ आपने फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई रेफरेंस दे रहे हैं या कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हैं. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हैं तो हमेशा रेफरेंस भी साथ लिख दीजिएगा कि दिस इज़ फ्रॉम दिस सोर्स. ठीक है, यू विड यूज़ इट सेम ब्लैक पेन, फिर स्पेस थोड़ा छोड़े ताकि वो सही से देख भी सकें. लेजिबल हैंड राइटिंग हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो. अगर कोट आपको कोई याद आता है या कोई आपको रेलिवेंट लगती है, उसको वहाँ पर फिट कर दें. और ये कोशिश करें कि शुरू और आखिर में हमेशा आप अच्छा ट्राई टू कम अप विद अ कोट और समथिंग ब्यूटीफुल. क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो शुरू और आखिर को गौर से देख रहे होते हैं, फिर बीच में आपने थोड़ा काम भी चला लिया तो वो चल जाता है. ठीक है, तो जस्ट कीप इट टू द पॉइंट, रेलिवेंट, लेकिन शुरू और आखिर को आपने अट्रैक्टिव बनाना है. अच्छा, थर्डली ये बात है कि एंड हमेशा हैज़ टू बी पॉजिटिव.
ठीक है। एंड को कभी होपलेसनेस नहीं दिखानी, क्योंकि वो चेकर ये भी देख रहा होता है कि इस बंदे ने आगे जाके अफसर बनना है, इसने आगे जाके पॉलिसीज़ बनानी है। अगर आपने होपलेसनेस एंड डिस्पेयर पे एंड किया तो फिर वो तो इवन इफ़ यू रिटन लाइक सो ब्यूटिफुली दे आर नॉट गोइंग टू पास यू, बिकॉज दे डोंट वांट होपलेस पीपल। ठीक है, ये आगे जाके आपकी साइकोलॉजिकल पे टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ रेकमेंड करते हैं, अगर आपने बड़ी होपलेस सी टॉपिक भी ली हुई है, कोई टेररिज्म पे टॉपिक ली हुई है, एंड पे हमेशा आपने पॉजिटिव पे ही एंड करनी है। कोई पोएम लिखें, कोई कपलेट लिखें। अच्छा, मैं ये करती थी क्योंकि मैं खुद ही थोड़ी पोइट्री करती होती थी, मैं कभी खुद से भी बना के एंड पे डाल दिया करती थी ब्लैक पेन के साथ, सो दैट मेक्स इट अट्रैक्टिव। ठीक है, बेचारे या चेकर की भी सोचें, यू नो दे हैव टू यू नो चेक सो मेनी पेपर्स टू मेक देम हैप्पी। ठीक है। अच्छा, now coming to some of your questions, how can we start preparation, from which point we should start? Well, you always start with selection of your subjects ना, कि आपने subjects कौन सा select किया, उसके बाद अच्छा I also think it's a process। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं होती, it's in you। आप न्यूज़ पहले से देखना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स की जो प्रोग्राम्स हैं BBC पे, फरीद ज़करिया पहले मैं काफ़ी देखा करती थी, अब तो खैर वी रियली बिजी विद ऑफिशियल वर्क, बट आई रियली रिकमेंड कि जो TV पे लोग आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको उनकी व्यू पॉइंट मिल जाती है। आई एम नॉट सेइंग ए साइड विद देयर व्यू पॉइंट, नहीं, टेक देयर पर्सपेक्टिव। आप दोनों साइड्स पे सुन लें एंड देन कम अप विथ योर ओन कंक्लूजन्स, कम अप विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड कम अप विथ योर ओन थिंकिंग। ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई रियली रिकमेंड। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर पे सवाल था। लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि चेकर्स भी उस पर ज़्यादा मार्क्स का थोड़ा मसला होता है, बट इफ़ यू थिंक यू कैन डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, यू कैन डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट इफ़ यू हैव स्टडीड इट बिफोर, देन आई थिंक यू शुड, व्हाई नॉट, इफ़ यू थिंक यू हैव द पोटेंशियल एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, व्हाई नॉट। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अगेन रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन वंस अगेन आई वुड कम बैक टू द पॉइंट के लोगों की बातों पे ना आए, यू आर एन इंडिविजुअल इन योर सेल्फ। तो अपनी अंदर के इंडिविजुअल को निकालें, गो डीपर इन टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन वन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जेक्ट एक पढ़ा हुआ है लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत दूसरे सब्जेक्ट पे है और आप उस पर 10 किताब आराम से पढ़ लेंगे, तो वाई डोंट यू गो फॉर इट। ठीक है, उसका आप आराम से रीड करें, बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी है तो आप उसको ज़्यादा दिल से पढ़ेंगे, उससे आपके जवाब में वो चीज़ आएगी जो बाकी को में नहीं आएगी। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, खुदा न ख्वास्ता आपने किसी चीज़ पे पढ़ा ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर आप ये करेंगे कि जस्ट थिंक, कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल आएंगी। जैसे जेंडर स्टडीज़ का पेपर था, मैंने इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं की थी ऑन जेंडर स्टडीज़, तो मैं क्या किया, आई जस्ट ब्रॉट द फेमिनिस्ट आउट इन मी, जो मेरी अंदर एक थॉट था। तो काफ़ी सारे जो मेरे जवाब थे वो ओरिजिनल थे, वो मेरे अपने थे, बिकॉज आई थॉट, ऐसा मैंने रात को नींद पूरी की हुई थी, आई वॉज फ्रेश, और ना मैं डरी हुई भी नहीं थी। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई वाज रियली रिलैक्स्ड ना। तो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, फिर मैंने देखा मुझे इस सवाल का तो जवाब भी नहीं आता और मुझे फिर यही जवाब करना है, तो आई थॉट, एंड बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव, मैंने काफ़ी सोचा, फिर मैंने उससे चीज़ें निकाली, फिर मैंने जवाब लिखना शुरू किया। और मैंने ये भी काम किया कि या तो यू टेक अ बी कॉपी पे आप अपना एक रफ आउटलाइन बनाएं, सवाल चूज़ करने में टाइम लें। ठीक है, यू नो कि अब मुझे इस सवाल पे ज़्यादा आता है, इस सवाल पे ज़्यादा आता है, इस सवाल पे ज़्यादा आता है, मैंने ये 3 करने या मैंने ये 4 करने। ठीक है, यू थिंक अबाउट देम एंड देन ड्राफ्ट एन आउटलाइन, ताकि आपको फिर डायरेक्शन मिले। फिर जब आप जवाब लिखना लगेंगे, आप ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, यू विल रिमेन रेलिवेंट, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगेन, कि अक्सर लोग जो है वो लेंथ के पीछे जाते हुए वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो फिर वो चेकर को भी मज़ा नहीं आता, वो तो वहीं पे काट देते हैं। ठीक है, वॉट एवर यू राइट रेलिवेंट, गिव लॉजिकल रीजनिंग्स फॉर एवरीथिंग। और अगर आपके पास, आपने रीडिंग ज़्यादा की हुई हो, आपने काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़े हुए हो, तो उसके रेफरेंसेस देने में कोई हर्ज नहीं। दैट्स ओनली गोना एड आइसिंग टू द केक एंड गोना मेक योर आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बिकॉज आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको जस्टिफाई भी किया हुआ है। तो लेट मी सी द कमेंट्स नाउ, हाउ कैन वी स्टार्ट? ठीक है, व्हाट एम आई डूइंग? ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू क्लियर? वेल, आई थिंक it's nothing that you say how did you manage to do. Everybody can do it, even you can manage to clear it. ठीक है, it's what's really important is that you take it from that perspective. ठीक है, आपने ज़्यादा जो है
अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। इवन इफ़ यू डोंट क्लियर, गॉड फॉरबिड किसी ने CSS को क्लियर ना भी किया, यू कम आउट एज अ मच मोर रिफाइंड पर्सन, ठीक है। बिकॉज अक्सर मैंने ये देखा है कि पीपल हु गिव द CSS अटैम्प्ट, उसके बाद आप उनसे बात भी करते हैं, आपको पता चलता है कि दे आर नॉलेजेबल पीपल, और कहीं ना कहीं वो फिट हो ही जाते हैं। कोई FIA में लग जाता है, कोई NAB में लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट बन जाता है, बिकॉज यू हैव सो मच नॉलेज इन यू विच इज़ सो डाइवर्स। CSS का ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इवन द 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, उसके साथ जो आप ऑप्शनल लेते हैं, फिर FPSC ने उसको ग्रुप्स में भी बांट दिया है, सो यू हैव टू take that, you have to choose from amongst that group. So I think it really gives you that diverse set of knowledge, so I think that's really healthy for you and it polishes you as a personality. तो अगर आपको इस पर्सपेक्टिव से उसको लेंगे ना, आपको वो टेंशन भी नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम पे कि ना मैंने CSS क्लियर ही करना है हर हाल पे, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, दिस इज़ ओनली अ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इन पॉलिशिंग एंड रिफाइनिंग योर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है जी। सो आई थिंक आई होप आई बीन एबल टू सेटिस्फाई मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ऐसे रही बात ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, ऐसे पे, प्रेसी पे, दैट्स अ होल थिंग दैट वी कैन हैव एन एंटायर लेक्चर ऑन। लेकिन डू फॉलो व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने पहले बात बताई थी, आई वुड रिपीट इट वंस मोर कि रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है। द मोर यू रीड द बेटर यू गोना बी, आपका उतना माइंड रिफाइन हो जाएगा। जो आप रीड करते हैं उसको राइट करें ताकि आप उसको भूलें नहीं, और कल को आपके अपने रेफरेंस के लिए आपकी लिखी हुई चीज़ रह जाएगी। हर रोज़ जो आप अखबार पढ़ेंगे, एडिटोरियल जो आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल पे प्रेसी लिखिएगा, ठीक है। जब आप प्रेसी लिखेंगे यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, और आपको प्रेसी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम जो अक्सर मैंने देखा है कि पीपल आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, ठीक है, जिस वजह से जो है उनका पे टाइम दे नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, पर जाहिर सी बात है कुछ मार्क्स तो वहीं पे चले गए ना। इट्स कंसिडर अ कंपैरेटिवली लेंदी पेपर, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, पास पेपर्स को भी आप सॉल्व करें, कभी वो रिपीट भी हो जाते हैं, अक्सर जो वोकैबुलरी सेक्शन है और सारा वो रिपीट हो जाता है, सो देन यू वुड बी एबल टू बी क्विक ऑन दैट, आपका टाइम बच जाएगा, तो आप वो बाकी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर भी पाएंगे, ठीक है। रीड मोर, राइट मोर, जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतनी आपकी हैंड राइटिंग भी तेज़ हो जाएगी, आपकी राइटिंग भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, एंड आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा बिकॉज आप सोचते हुए लिखेंगे, एंड देन अगेन यू हैव द एस्पेक्ट ऑफ मसल मेमोरी। अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट थिंक, दिस इज़ समथिंग आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज़ थिंक थिंक थिंक, बिकॉज आपने किसी और की ओपिनियन को भी आपने लिया, लेकिन उसके साथ आती है आपकी अपनी चीज़। एवरीबडी हैज़ समथिंग यूनिक इन देम, वो चीज़ को निकालना, वो ओरिजिनलिटी को ले आना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट ग्रुप्स पे अभी फोकस ना करें, फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। आपने इंशाल्लाह खैर से जब रिटन क्लियर कर लिया, आपकी इंशाल्लाह इंटरव्यू पे टाइम आएगी, तभी आप ग्रुप्स पे फोकस कीजिएगा। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, ठीक है। बाकी कॉमनली PAS, PSP, कस्टम्स ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो मेरा भी फ़र्स्ट जो है वो PAS ही था, सो दैट्स व्हाई आई एम करंटली एज अ PS ऑफिसर। अच्छा, हाउ डिड यू पास? अगेन आई थिंक दीन दुनिया दोनों को साथ ले चलें, लोगों के साथ हमेशा अच्छा पेश आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हासिल करें, ठीक है। सुबह तहज्जुद पढ़ सकें तो तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू करें। ये वक्त है पढ़ने का, एग्ज़ाम के दिनों पे नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे यकीन कीजिए देयर इज़ गोना बी टेंशन, नेचुरल है, अंदर से आएगा, यू हैव टू कंट्रोल इट। आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप आराम से उसको हैंडल कर लेंगे, तैयारी नहीं होगी तो रातों को ये बिल्कुल ख्वाब आएंगे, कह रहे मैंने तो तैयारी नहीं की, मैंने अब रात को करना है, फिर सारी रात जाग के योर प्रोडक्टिविटी विल डाई, तो दैट इज़ नॉट समथिंग वी वांट, ठीक है। आराम अच्छे से करना है, खाना अच्छे से खाना है। अच्छा, शेयर माई एक्सपीरियंस, आई टोल्ड यू आई वाज़न्ट स्कैर्ड क्योंकि आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है, आई वाज वर्किंग एट द सिविल एविएशन अथॉरिटी, फिर मेरी ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी इन चीज़ों पे, साइकोलॉजी पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट वैसे ही था। अच्छा, जो मैंने सब्जेक्ट्स भी चूज़ किए मैंने खुद से चूज़ किए, मैंने अपने इंटरेस्ट से चूज़ किए। आई डेंट गो कंसल्टिंग पीपल कि मैं क्या लूँ, मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट पर्सन जो अपने लिए मैं चूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने अपने चॉइस पे मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे, एंड साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, IR मैंने उस वक्त लिया था, और IR उस दफ़ा अटैक भी हुआ था, 2017 की बात है कि IR वाज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ पीपल फेलिंग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी पास्ड इट अप। तो ये भी बात है कि अगर वो सब्जेक्ट स्लॉटर भी हो तो यू शुड मेक योर सेल्फ सच कि आप उसको पास कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट यू,
चूज़ सब्जेक्ट्स, चूज़ देम वाइसली, टेक टाइम, फिर उस पर फोकस करें। अच्छा, अखबार आपने पहले से स्टार्ट करना है बिकॉज दिस इज़ कंपलसरी, ठीक है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर पहले से आप फोकस करें। अखबार रोज़ पढ़ें, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहें, किताबें ज़्यादा पढ़ें, आप पहले से बुक वर्म है, पहले से आप पढ़ सकते हैं, तो इट्स गुड। अच्छा, सीए के बाद भी वेरी गुड है, अकाउंटिंग इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी इन्वॉल्व है, तो उसमें सॉलिड मार्क्स मिल जाती हैं। जिधर साइंस आया, जिधर मैथ्स आया, उधर सॉलिड मार्क्स आ गए। अच्छा, डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, इट्स गोना मेक इट ईजियर फॉर द चेकअप। और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको फिर मार्क्स भी फिर ज़्यादा दे देता है, फिर वो चीज़ सॉलिड हो जाती है। हाँ, इफ़ यू गो फॉर लाइक आर्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट जो हम कहते हैं ना, जैसे आईआर है, सब्जेक्टिव है बहुत, या कोई और सोशोलॉजी, फिर भी स्कोरिंग है, बट दीज आर सम थिंग्स दैट आर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हैज़ टू रिमेन स्कोरिंग, ठीक है, तो उसमें काफ़ी थिंकर्स वगैरह आ जाते हैं, फिलोसफर्स आ जाते हैं, बट उसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है। बट दैट इज़ अगेन स्पेकुलेशन। इफ़ यू आर गुड एट इट, आपकी उसमें एप्टीट्यूड है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह करें, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और अकाउंटिंग, दीज आर इकोनॉमिक्स, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग, तो आप ये ना कहें कि वी हैव टू टेक इट। मैम ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स अबाउट यू। अगर आपको लगता है आप किसी और सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया तो केमिस्ट्री में करें, अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है, यू कैन जस्टिफाइड। इंग्लिश ऐसे टिप्स, दैट्स ऑल व्हाट आई सेड बिफोर, रीड मोर, राइट मोर, फिर बिकॉज टॉपिक्स वेरी, हाँ, गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, ठीक है, बिकॉज अक्सर टॉपिक्स रिपीट हो जाती हैं। बिल्कुल, अगर मैप्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर एबल टू मैनेज विद इन दैट टाइम तो मैप तो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैप्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब अगर आप अपने आप को चेकर की जगह रखेंगे ना, आप वो खोलेंगे, दैट्स गोइंग टू मेक योर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हाँ, उसको रंग बिरंगी ना बनाए, ठीक है, जस्ट यूज़ अ पेंसिल एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन्स, तो दैट्स गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, वो अच्छा काम हो जाएगा। और सी ए इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, उसमें हमारे काफ़ी ऑफिसर्स सी ए पास भी हैं, तो दैट्स गोना बी गुड, ठीक है। ज़्यादा रीड करें, रेफरेंसेस जितना दे सकते हैं दे, मेक योर कॉपी ब्यूटीफुल, ठीक है, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आपने बुक्स जो है वो FPSC के अपनी जो रिकमेंडेड काफ़ी बुक्स आपको मिल जाएंगी, जस्ट सी के आपको एक्सेस किस किस चीज़ की है। तो अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर कोई लाइब्रेरी आप लोग ज्वाइन करें ना, तो लाइब्रेरी में यू वुड बी एबल टू गेट दोज बुक्स, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। हाउ टू बी परसिस्टेंट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। डोंट थिंक कि आप ये सिर्फ CSS के लिए कर रहे हैं, आप ये सोचें कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें, आप अपनी पर्सनालिटी को रिफ़ाइन कर रहे हैं। यकीन करें कि जब आप नॉलेजेबल होते हैं ना, आपको चीज़ें आती हैं, इट रियली आपकी सोच चेंज हो जाती है। व्हेन यू टॉकिंग टू पीपल, द वे यू लुक एट थिंग्स, द वे यू थिंक अबाउट एनीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको अगर हिस्ट्री आती है तो आप किस चीज़ को देखते हैं, आप उसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स, जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। उसको टेंशन ना लें, उसको एक डोंट थिंक एज अ हर्डल कि नहीं मुझे CSS करना है फिर मैं ज़िंदगी जीऊँगी, नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। CSS के बाद भी लोग इतने ज़्यादा बुक वर्म्स हो जाते हैं, एवरीबडी, यकीन करें, ऑल ऑफ द ऑफिसर्स दे हैव देयर ओन लाइब्रेरीज एट होम, इवन मेरे घर में लाइब्रेरी है, तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल डू, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, इट बिकम्स योर हैबिट, फिर आपने बुक्स रीडिंग ही करनी है। अच्छा, लेंथ पे बेटा फोकस ना करें, यू कैन, इट कैन बी ऑफ 5 pages, it can be of 6 pages, it can be of 3 pages, it can be of 8 pages, as long as you're able to give the answer, ठीक है। डोंट ट्राई टू राइट टू लेंथी आंसर्स, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट बी क्रिस्प टू द पॉइंट। हाँ, डोंट राइट टू लिटिल इधर, लेकिन ये कि एज वट एवर इज आस्क्ड यू शुड आंसर ऑल ऑफ इट, ठीक है। यू गिव योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एवरीथिंग, गिव एक्सप्लेनेशंस एंड add it up with references as well, data, stats, facts, जितनी आपको आती हो, ठीक है, वो आप जस्टिफाई वट एवर यू कैन, ताकि उसको सॉलिड वो रीजनिंग मिल जाए, एंड दैट। अच्छा, कम अप कंक्लूजन करें, शुरू में इंट्रोडक्शन बनाएं, हेडिंग्स ना भी बनाएं तो शुरू में एक अट्रैक्टिव आंसर की इंट्रोडक्शन बनाएं। कुछ लोग आउटलाइंस भी बनाते हैं शॉर्ट, अपने लिए आप बनाइए, ताकि इवन द चेकर वुड नो कि आपकी वो क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स गोना गेट टू लॉन्ग, आपको इतना टाइम नहीं है, तो फिर just keep it as long as you think you need to justify that answer, ठीक है, जो आपने लिखा है। You don't need a grip on accounting to pass CSS, you need a grip on accounting if you have accounting as a subject. If you don't have it as a subject, you don't need to have a grip on it.
इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? वेल, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? रीड ज़्यादा करें, राइट ज़्यादा करें, टॉक ज़्यादा करें, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज़ देखा करें, इंग्लिश के न्यूज़ देखा करें, इंग्लिश की टॉक शोज़ देखा करें, ताकि आपकी ब्रेन को बार बार वो जाता रहे सिग्नल एंड स्टिमुलस, ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव हो जाएगी. Please refer the books. Like I said before, I don't know if I already answered that, but you have it on the FPSC के website already. और अक्सर डोगर कैरावान वाले they also publish these things, तो कहीं से ले लें तो उसमें you would have the recommended books as well. बेस्ट बुक फॉर वोकेबलरी विदाउट डॉन न्यूज़पेपर. वोकेबलरी के तो आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितने बल्कि काफ़ी वर्ल्ड टाइम्स वाले भी पब्लिश करते हैं. बट आई ऑल्सो थिंक आप जितने रीड करेंगे ना, चाहे आप नावल्स ही रीड करें, आप कोई बुक्स ही रीड करें. अभी एक अच्छी बुक आई है कि एसिंग CSS 40 बुक्स की वो कंसोलिडेटेड है शॉर्ट में, तो इसको भी आप जस्ट एवरी टाइम यू रीड ना, आपको कोई लफ्ज़ समझ ना आए उसको अंडरलाइन करें, उसकी मीनिंग देखें, फिर वो मीनिंग आपको आ जाएगा. तो इट वुड ऐड अप इनटू योर वोकेबलरी वर्ड्स. अपने फ़ोन पे डिक्शनरी डाउनलोड करें, अपने फ़ोन पे वोकेबलरी का कोई ऐप डाउनलोड करें, हर रोज़ आपको नया वर्ड वो देगा. तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट वन बेस्ट बुक. आई थिंक इट्स अबाउट यू. आप किसी भी चीज़ से ना वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो नेट ही क्यों ना हो. नेट ही क्यों ना हो, बिल्कुल. डिसेबल्ड कैंडिडेट ऑफ पास और PSP, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करके आपको बताएंगे. डिसेबल्ड ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सा है ना. मगर आई साइड जैसे वीक हो तो आई थिंक थोड़ा लेज़र सर्जरी के साथ हो सकता है. एंड आई डोंट से दैट डिसेबल्ड, आई से डिफरेंशियली एबल्ड है. इसको चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क थोड़ा डिफरेंट है. लेकिन डोंट लूज़ होप, देयर सो मच यू कैन डू. फॉरेन सर्विस में है, आई नो वन लेडी, और बिल्कुल हो सकता है. तो जस्ट फोकस ऑन गिविंग द एग्ज़ाम्स, ठीक है. शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऐसे. अच्छा, ऐसे का ये है कि आई यूज़ टू राइट ना, मैं वैसे लिखा करती थी पहले भी. तो आई जस्ट वेंट, और हमारा वो था कॉलोनियल मेंटालिटीज़ इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस. तो दैट वाज माय. अच्छा, अगेन यू नीड टू नो कि आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ द मेन फोकस यहाँ पे ना. तो इस पे आपने वो करना है एंड देन जस्टिफाइड कम अप विद दी आउटलाइन एज आई रिमेन रेलिवेंट. मैंने इतना लंबा ऐसे भी नहीं लिखा था. मेरा ऐसे वाज लाइक 5 और 6 पेजेस. लोग जो कहते हैं कि पूरी पूरी कॉपीज़ भरनी है, नॉट नेसेसरी. ऐसा मेरी राइटिंग वैसे इतनी बड़ी नहीं है. तो आई जस्ट रोट 4 और 5 पेजेस एंड आई काइंड ऑफ कवर्ड अप एवरीथिंग. मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए थे, मैंने काफ़ी रेफरेंसेस दिए थे, और I just came to that. Is it possible? Yes, of course it's possible. I did it with job. बल्कि मेरी 9 to 5 जॉब थी, और 6 to 9 मेरी मास्टर्स की क्लास होती थी NED में. आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स इन इंजीनियरिंग. तो मैं शाम को वहाँ पे चली जाती थी. फिर मैं अक्सर बीच बीच में जितना मैं रीड कर सकी थी तो मैंने फिर सारा वो रिवाइज़ वगैरह किया. अच्छा, अगेन पहले की आपकी एक्सपीरियंसेस वो सारा आपको डिफ़ाइन करती हैं, तो अक्सर आपके जवाबों में वो रिफ्लेक्ट करती हैं. आपने पहले भी कोई किताबें पढ़ी होंगी, आपने स्कूल में भी जो देखा, आपकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस. जैसे मैंने जेंडर स्टडीज़ में काफ़ी जो एग्जांपल्स दिए थे वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे, लाइफ एक्सपीरियंसेस थे. तो ये चीज़ें काफ़ी आपको काउंट करती है. और इसके अलावा so I wish you all the very best everyone. अब I will have to sign out, लेकिन I think कि once again I would reiterate to all of you कि CSS is not the end of the world. तो इसको आपने take it as something which is going to refine your personality, and refine your personality it will. ठीक है, when you come out a much more knowledgeable person, you are going to even educate the checker out there. So there is so much you can do. अच्छा, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, वन लास्ट आंसर आई एम गोइंग टू गिव यू. टाइम इज़ अगेन सब्जेक्टिव. कोई बंदे 3 महीने में कर लेते हैं, कोई बंदा 6 में कर लेता है, कोई 10 में. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग. आप 3 महीने में भी कर सकते हैं अगर आप फुल फ्लेज जो है वो CSS की तैयारी करें. बट उसमें जाहिर सी बात है, यू नीड टू हैव द बुक्स रेडी, यू नीड टू हैव सिलेक्टेड योर सब्जेक्ट्स. अच्छा, वन लास्ट टिप, मैंने वीडियो लेक्चर से भी काफ़ी फ़ायदे हासिल किए. मतलब आई यूज़ टू लॉग इन यूट्यूब पे काफ़ी क्रैश कोर्सेज, इकोनॉमिक्स की, US हिस्ट्री की, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, हाँ. तो दैट्स अगेन आई थिंक समथिंग दैट आई फाउंड रियली हेल्पफुल. बाकी BBC पे भी अगर आप जाएंगे तो BBC पे पुराने भी आपको सारे मिल जाएंगे. जैसे अरब वर्ल्ड पे हर चीज़ ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है, तो यू जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू नो यू गो टू दैट, और सारी आपको पता चल जाएगी. नॉलेज यू कैन गेन फ्रॉम देयर.
ठीक है, वीडियोस मेक इट ईजी, मतलब अगर जैसे मैं ये करती थी, मैं बहुत थकी हुई अगर होती थी, मैं ऑफिस से यूनिवर्सिटी से वापस आके आई यूज़ टू वॉच वीडियो लेक्चर्स, फिर मैं हमेशा उस पर सोचती थी, जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा, तो यकीन करें थिंकिंग इज़ समथिंग दैट रियली आई थिंक मेड मी रिकॉल एवरीथिंग आई हैड स्टडीड, और फिर आगे भी बड़ा मुझे हेल्पफुल फ़ायदा हुआ. Of course, they have. They have power to exercise authority, especially on the seat that you are. Hi, Murad. Murad is watching. So, this is something that, of course, you have power to exercise. Murad is a PSP from our batch. Murad bilkul has authority. So, I think this is again something they definitely have their options to exercise authority as well. बहुत पावर है, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिफाइंग दैट एग्ज़ाम. Go with a positive mind, go with a positive attitude, and I wish all of you all the very best. It was really nice talking to all of you. Allah Hafiz.